ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امیر عباس صاحب. ہم ٹرانسمیشن میں کافی جائزہ لے رہے ہیں چیزوں کا، لیکن ساتھ بہت ساری اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اور اب لوگوں میں ایک تذبذب ہے کہ کتنے نتائج آ چکے ہیں، کہاں آیا ہے کہاں نہیں آیا. تو ہم NA1 سے لے کے NA266 یعنی قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کا اسی سیکوینس کے ساتھ کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کے سامنے نتیجہ رکھ رہے ہیں. جی مجاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دو باتیں انہوں نے آپ نے بتائیں. ایک تو ایک بہت ہمارے سینئر صحافی نے جو جس لینگویج میں نواز شریف صاحب کو نصیحت کی ہے. انہوں نے نام لینا ضروری ہے. اچھا کسی سینئر صحافی نے ابھی جو ٹویٹ کر رہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن وہ ایتھکس کے خلاف ہوتا ہے شاید. تو ان لیکن بہت سینئر سیزن بلکہ بہت سینئر اینکر بھی انہوں نے اور جو حیرت اور میاں خان نے انہوں نے نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب یہ کڑوا سیب انہوں نے کہا زہریلا سیب ہے، اس کو مت کھائیے گا ورنہ مرنے کا اور چانس. دوسرے خبر جو آپ دے رہے تھے کہ جو ساری نظریں اور جس میں غالباً تمام غیر جانبدار اور عام طور پر خیال تھا کہ بیرسٹر سلمان راجہ ایک تو خیر لائر اور پرسنالٹی وائز وہ ضرور جیتیں گے. اور اون چودھری صاحب کو کیونکہ ٹرینڈ یہ تھا کہ PTI والوں کو جو نون لیگ جوائن کرتے تھے یا ان کی حمایت ہوتی تھی ان کے بارے میں لاہوری بڑا ریئیکٹ. دیکھیے اون چودھری صاحب نے جس طرح سے ساتھ چھوڑا اور جن معاملات پہ ساتھ چھوڑ کے ایکسپوز کیا خان صاحب کو، وہ میرا خیال ہے کہ اس کا ریاکشن obviously ان کو لاہور میں ملنا تھا. لیکن چلتے ہیں امیر عباس صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اب حلقہ NA18. اوکے جی ریزلٹس دکھائیے جی. NA18 کے قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 18 ہے اور یہاں پر جناب جیتے ہیں کون؟ عمر ایوب خان. سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے ووٹوں سے جیتے ہیں. 1,92,948 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. اتنے ووٹ پھر آپ کہیں گے کراچی والوں میں ہر بار کراچی والوں کو شرم دلواؤں گا. اور آپ مجھے کہیں گے اور میں ادارہ شماریات کو ہارے ہیں جی PMLN کے بابر نواز 1,12,000 یعنی انہوں نے 80,000 کی لیڈ سے شکست دی. ووٹنگ ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں اچھا یہ پہاڑی علاقہ ہے. ابھی تک ہم نے جتنے حلقے کور کیے ہیں ریزلٹس جن کے آ چکے ہیں یہ سب سے بڑی لیڈ ہے عمر ایوب خان صاحب کی. 80,000 روپوش بھی تھے یا گرفتار تھے یا نہیں روپوش. دیکھیں سردی بھی ہے اس علاقے میں، پہاڑی علاقہ ہے، اس کے باوجود لوگوں کا ٹرن آؤٹ یہ بہت زبردست ہے. ابھی یہ زہریلے سیب کا ذکر ہوا اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا سے میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو جواب ملا ہے تو مجھے پھر ایک شعر یاد آ گیا کہ نکلنا خل سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آب ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تنظیم لوگوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہر نہیں کہ ہمارے ملک میں جو پہلا مارشدہ لگایا جنرل ایوب خان ان کے دادا تھے اور ہمارے بہرحال گوہر ایوب صاحب کراچی والے ابھی تک نہیں بھولے، ابھی ان کا انتقال ہوا. اور بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی اور کتابیں بڑی انٹرسٹنگ. ایک لائن لکھی کہ جب گوہر ایوب صاحب اور نواز شریف سفر کر رہے تھے اور سجاد علی صاحب کا دور تھا تو گوہر صاحب کہتے ہیں کہ نواز صاحب نے کہا یہ سجاد علی شاہ کو گرفتار نہ کر لیں. اصل میں جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے منع کیا، ان کو ایک بہت زیادہ میرا خیال ہے ان کو ایکسائٹمنٹ میں دے دیا گیا تھا کہ گل بھی ہوگی ساڑی یہ بھی ہوگا. ایک بات تنظیمہ کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب تو گل ود گئی ہے جو جلسوں میں KPK والوں کو کہا کہ جناب تم لوگ بے وقوف ہو اور بے وقوفی والی بات کی گئی اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہا، اس کا رسپونڈ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا. بلاول صاحب نے بھی کہا اچھی بات نہیں تھی جی. NA19 اگلا جو نتیجہ ہمارے پاس جی نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر 19 ہے اور یہاں سے جناب اگین انڈیپینڈنٹ اسد کیسر صاحب جو کہ سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں اور ان کو بھی بہت سارے مقدمات کا سامنا ہے. اپس اینڈ ڈاؤن دیکھا جی 5 دفعہ گرفتار ہوئے. 1,15,635 ووٹ انہوں نے شکست دی ہے. JUI کے مولانا صاحب کی پارٹی کے فضل علی صاحب کو 70,000 ووٹوں سے ان کے ووٹ ہیں جی 45,567. اور اسد کیسر صاحب نے بہرحال ایک خاصی بیچ میں ذرا کچھ شک ہوا تھا اور قاسم صاحب آپ کو وہ ایک پریس کانفرنس کا تھا معاملہ نہیں وہ پریس کانفرنس ہونے والی تھی پھر رک گئی اور پھر معاملہ چلا گیا. ان کے ساتھ بھی وہ کلاسیکل کیس ہوا ہے جس میں ایک دفعہ بیل سے باہر نکلتے تھے بیل سے باہر فورن اریسٹ. تو یہ تو ہونا تھا، پھر ایک ہی دفعہ پکڑ کے کچھ کر دیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. NA20
कौमी असेंबली का हल्का है जी 20। हम कौमी असेंबली के हल्कों के बाद आपको सूबाई असेंबली की अभी तक की जो सीट की आ रही जो नतीजा वो भी आपको दिखाएंगे ओवरऑल पोजीशन। NA 20 में जनाब कौन है जो कि जीते हैं? शहराम तरक्की साबिक सूबाई वजीर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर ये लड़ रहे थे इलेक्शन जी। 1,22,965 वोट 70,000 और इन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के वारिस खान को तकरीबन 75,000 की लगभग लीड से शिकस्त दी है। उनके हैं 47,535। अमीर साहब इस बात से एग्री नहीं करेंगे मेरी, मैं शहराम का भी नाम पढ़ी हूँ। अगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाता, जितने करप्शन के वहाँ पे किस्से थे, जितने करप्शन के वहाँ पे इल्ज़ामात थे, जितनी बैड गवर्नेंस की वहाँ पे कहानियाँ थी, ये कभी इतनी लीड और कभी इतना वोट बैंक शायद ना होता। ये एक पहलू है। BRT से लेकर मैं आपसे क्यों मैं बाकी क्यों डिसएग्री करूंगा? मैं इनसे एग्री करूंगा। जाके ठीक बात करती मैं एग्री करता चले, अच्छी बात है ये So, एक एग्रीमेंट हो गया जी अभी जब से हमने ट्रांसमिशन शुरू किया। नोट करते 20 हल्कों तक आपको पहुंचना पड़ा एग्रीमेंट के लिए। ओके जी। असल जब पंजाब में दाखिल होंगे तब गुफ्तगू होगी। अच्छा बरेलवी साहब ये तो ना करें ऐसे, फिर आप कहते हैं बड़ा सूबा देके जानते हैं सारी बात। आप भी जो है ना वहाँ पे अहमियत दे के बैठे हुए। अच्छा जी NA 21 कौमी असेंबली का हल्का है जी 21। यहाँ के रिजल्ट्स देखते हैं जी और यहाँ पे जनाब अगेन इंडिपेंडेंट की लाइन है, कहते हैं किताब 14 हो चुके हैं अभी तक। ठीक है जी। आजाद उम्मीदवार मुजाहिद खान 1,16,049 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए इन्होंने हैं। जी 56,000 की लीड से शिकस्त दी है जमीयत उलमा इस्लाम के आजम खान उसमें एक साहब बात है, को 60,000। और एक बात है ये जो मजहबी वोट भी काफी मिला है, बरेलवियों ने भी काफी दिया है। बिल्कुल दिया ये होगा। खाली मुजाहिद खान है सर, मुजाहिद बरेलवी नहीं है। अच्छा मुजाहिद साहब इसलिए खुश है उनका नाम मुजाहिद खान है जी। NA 21 का नतीजा हमने आपको दिखाया जी। अभी तक वैसे JUI को बदतरीन शिकस्त नजर आ रही है। JUI को खैबर पख्तूनख्वा से सिंध से भी बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है। और अब देखते हैं बलूचिस्तान के जब हम रिजल्ट्स देखेंगे। हालांकि वो PDM के सरबराह थे मौलाना और उन्होंने इतना रिलीजियस कार्ड भी खेला, यहूदी साजिश भी चलाई, लेकिन बात बनी। अफगानिस्तान का विजन भी NA किया। 22 कौमी असेंबली का हल्का रिजल्ट्स दिखाएं जी। और यहाँ पे जनाब आतिफ खान साहब जाहिर है एक और मारूफ नाम जो सूबाई सतह की जो लीडरशिप थी उभर के सामने आए, बड़े यंग बड़े वाइब्रेंट एक्चुअली। लेकिन होती साहब का भी बड़ा नाम है इस बिल्कुल है, के... लेकिन 1,14,748 वोट लेके आतिफ खान साहब यहाँ से कामयाब हुए और इन सबको कामयाब कराया है। अब मैं अगली बात नहीं करती जी। अमीर हैदर होती साहब के 66,159 वोट हैं, तकरीबन 50,000 की लीड है। ये KPK में बार बार तुनक लगा रही हैं कि अगर ये टाइम पूरा करने दिया जाता और इनकी बैड करप्शन गवर्नेंस होती तो ये हार जाते। लेकिन जब हम सिंध की बैड गवर्नेंस करप्शन की बात करेंगे, मैं इनका ट्वीट पढ़ देता हूं। अमीर हैदर होती साहब ने लिखा है कि मेरे आबाई जिला मर्दान के तमाम हलकों पर ANP की शिकस्त की जिम्मेदारी खुले दिल से तस्लीम करता हूं। मेरे हल्के और मर्दान के वाम ने अगर हम पर एतमाद नहीं किया और तो इसी की शिकस्त की जिम्मेदारी खुद वो अपनी पार्टी पे लेते हैं। तो एक पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया। अच्छा बाय द वे जब ये थे वजीर आला थे, यंग वजीर आला, बहुत नफीस, बहुत सुभाव से बात करने वाले, फिर ये सेंटर में आए, वहाँ पे MNA बने। इनके वालिद साहब की जो शोहरत थी, अब वो रहने दीजिए, वली खां खानदान के थे, आजम होती जी आजम होती साहब के ऊपर नैब के करप्शन स्कैंडल्स थे, नैब को तो छोड़ अरेस्ट हुए थे ये। और खुद अमीर हैदर होती साहब को इजी लोड चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। इनके दौर में भी करप्शन के ANP के बड़े संगीन इल्जामात इन पर लगे थे। लेकिन ये वैसे बहुत जबरदस्त इंसान है। अच्छा बल्दियाती मैदान में फिर भी इस मर्दान से ANP को कामयाबी मिली हमेशा और वो अभी भी उनकी इनका गढ़ था ANP। अच्छा जी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में हमेशा ये कहते थे हम कि यहाँ से कभी भी कोई जमात दूसरी बार अलग, भाई तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा ने चुना है। इस पे गौर करने की जरूरत है। बेशक जो सोचने वाले हैं उनके लिए निशानी है। और वो लोग करें ना सर मैं वही कह रही हूं मुजाहिद साहब, मैं यही कह रही हूँ कि बेशक जो सोचने वाले हैं उनके लिए निशानी है। अच्छा देखिए, जो लोग अपने कायद के साथ खड़े रहे हैं वो इन द एंड उनको उनके सब्र का या कुर्बानियों का या उसका समर मिल रहा है। हाँ, जो कहीं के और जो कहीं के नहीं रहे वो कहीं के नहीं रहे। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। NA 23 जी, NA 23 रिजल्ट दिखाइए जी। और NA 23 में अली मोहम्मद खान साहब 1,02,175 वोट।
अली मोहम्मद खान साहब को बहरहाल मैं पूरे नंबर देती हूँ जिस और तरीके जितनी से अच्छी तकरीर करते हैं ये पार्लियामेंट में जो उन्होंने की और आखिरी तकरीर करी। जिन लोगों अब मैं को हारने वाला को भी तो तारुफ करवा देता आप करवा हूं। दो। बताइए। अवामी नेशनल पार्टी के हैं जी अहमद खान बहादुर साहब, ये भी अच्छे आदमी हैं, वेल रिप्यूटेड हैं, लेकिन तकरीबन 75,000 की लीड से इनको हराया गया। उन्होंने 33,910 वोट लिए हैं। अच्छा, ये मर्दान 3 का नतीजा। अभी हम आपको जीतने और हारने वाले लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ट्रांसमिशन में आगे जाके यहाँ पे जो तीसरे चौथे नंबर पे हैं, परवेज खटक साहब की पार्टी ने कहाँ तीर मारा है, परवेज खटक कहाँ गए? जी वो अभी यहाँ तक तो नजर नहीं नहीं, आया, नंबर 3 पे भी नहीं है सर परवेज खटक। यहाँ तक तो नजर नहीं आया। कहाँ से खड़े हुए थे? सर ये कौम ने एक बात साबित कर दी है कि इस मुल्क में किंग्स पार्टियां गैर फितरी और मशरूम ग्रोथ अगर सियासतदानों की हो या सियासी जमातों की हो, वो आईपीपी हो, आईपीपी का हेड भी दोनों हल्कों से मारा गया। अदम इस्तेहकाम। अच्छा आते हैं जी। अली मोहम्मद खान के बारे में मैं एक जुमला ये कहना चाह रही थी कि जितनी तेज़ी से उन्होंने उनकी जो सियासी तरबियत नज़र आई, जितनी तेज़ी से उनकी शख्सियत में तब्दीलियाँ आई, वो हमने क्योंकि खुद देखी हैं। एक नौजवान सियासतदान और पार्लिमानी 2013 में पहली बार आए जी, और फिर आप देखें कि पार्लिमानी लीडर बनना, फिर तमाम चीज़ों को सभाओं से पार्लिमानी वजीर बनना, और नहीं मतलब वजीर बने, और फिर जब खान साहब सारी जमात के साथ चले गए, द वे ही हैंडल्ड दैट सिचुएशन, आई थिंक दैट वाज इम्प्रेसिव। बिल्कुल, तंजीम, वो- ये बताइए इसी में परवेज खटक खड़े हुए हैं? नहीं, वो तो नौशहरा से। सर वो नौशहरा और से। और केपी के में बहुत सी अभी- नौजवान की आदत मिली है अभी जो हम पीटीआई मैदान ने में पहुंचे दी। हैं। शाहीन बाग। अच्छा, कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में मैं उस वक्त मौजूद था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई इमरान खान के खिलाफ, और हम भी वहाँ सिर्फ मौजूद एक अली मोहम्मद खान वहां पे थे जिन्होंने तकरीर की। हम भी वहाँ और मौजूद थे। बहुत बेहतरीन तकरीर की थी खैर उस जी मौके पे, बहुत बेहतरीन। जी जी, हल्का 24 जी, NA 24 कौमी असम्बली का हल्का है जी 24। अभी तक जो हम चार आपको, सद्दा। और ये 4 ये सदा हम अभी आप लोग पहुंच आए गए हैं। हैं 24 तक और 14 18 इंडिपेंडेंट अगेन 4 सद्दा भी गढ़ रहा है मेरे ख्याल में वली खानों का। 89,801। और JUI के हैं जी गौहर अली साहब, उन्होंने 48,545 वोट लिए हैं, तकरीबन 40,000 की लीड से जी, उनको भी 89,801 हराया वोट है। 4 सद्दा तो मैं ख्याल है वली खानों का गढ़ समझा जी जाता है। ज्यादा जी। उनका ज्यादा वली वहाँ खान पे- यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे। जी हल्का 25 NA 25 और यहाँ से जनाब जीते हैं अगेन फजल मोहम्मद खान साहब, आज़ाद उम्मीदवार। 1,713 वोट उन्होंने हासिल और किए हैं। इन्होंने अहमद वली खान जो कि ANP के सूबाई सदर हैं, उनको 33,000 की लीड से शिकस्त दी है। बड़ी उनके लीड हैं है। 67,876। ये भी नौजवान की आदत थे, लेकिन इनके अंदर 26-27 वो के हमारे करिश्मा, पास वो visuals नहीं। स्पार्क, वो विजन बहुत आखिरी दिनों मौजूद में अहमद नहीं वली है। खान ने अपने आप को मतलब लोगों में लेकर आए और जलसे जुलूसों में उन्होंने बातें लेकिन की। इनके वरना अंदर वो इतना डेप्थ ज्यादा नहीं है जो limelight इनके नजर नहीं खानदान है। के बाकी मेरा लोगों में ख्याल है कि जो एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बात हाँ, कर रहे हैं वो- ना, इवन वो जो इरफान यार खान वली में थी, समर बिलोर में वो नजर में आती किसी है। हद तक उनमें है, लेकिन इन्होंने बहुत बिलोर साहब में वो नजर आती है, लेकिन बहुत मायूस को इनकी अच्छा जी, हमारे पास फिर ये 26 लूज कैनन भी हैं, गुफ्तगू बहुत जी जी जी। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, आप हमें वैसे दिखा सकते हैं उनके उम्मीदवार। हाँ, उम्मीदवार दिखा दीजिए। NA 26 नतीजा अभी यार तक हम खुद ही नतीजा अनाउंस नहीं करेंगे, आया। हमने खुद होल्ड करके रखा हुआ है भाई। हम प्रोड्यूसर नहीं साहब, कोई नतीजा हम नहीं देखिए, सुनाएंगे हमारी वो। टीम कितनी विजिलेंट है। वो कहते हैं सरकारी नतीजा नहीं आया, आप सरकारी नताइज पढ़े मुकम्मल, लेकिन हम हलकों का सफर करा रहे हैं अपने नाजरीन को। तस्वीर खुद भी। दिखाएं जरा, पार्टियां दिखाएं। शक्लें याद कराएं, कौन था, कहाँ था, कैसे था। ओके, 27 है जी हमारे पास। एक चेहरा अपने ध्यान में रखना। चलो जी, 28 पे आ NA 28 का नतीजा हमारे पास जी। 26 और 27 का नतीजा जैसे आएगा वो हम आपको दिखा देंगे जी। NA 28 में जाइए JUI की कामयाबी अच्छा। जी। और यहाँ से जनाब नूर आलम खान साहब जीत गए हैं। 1,38,399 वोट उन्होंने लिए हैं। नूर आलम खान साहब PTI के मुनर्रफ रुकन, जिन्होंने वाहिद पीपल्स और- पार्टी को छोड़ के PTI ज्वाइन की थी और PTI से JUI फे में चले गए। पहले भी जीते थे और माशाल्लाह ये जी, जरा हारने वाले का नाम बता दें। जी साजिद नवाज खान साहब जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तकरीबन 60,000 से जायद की लीड है नूर आलम खान साहब की। इनकी जीत वैसे पहले भी जीत चुके हैं। ये एक सेटबैक है। अच्छा, वैसे नूर आलम खान साहब को जो हमने देखा बहुत पार्लियामेंट मुश्किल के थी अंदर, इनकी हाँ, जीत वैसे। और जिस टाइम पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बातचीत की थी, वैसे मुझे ये लग रहा था कि अदरवाइज ये बहुत जबरदस्त आदमी जी जी, है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत जबरदस्त। ऑनेस्ट आदमी है, जी, जी, फाइनेंशियली जी, इनकी बिल्कुल, इंटेग्रिटी है।
اچھا دوسرا گراؤنڈ پہ ان کی ریئلٹی بہت زیادہ ہے, گراؤنڈ پہ ورک جو ان کی تھا, فیملی بہت پرانی ہے, ان کا اور اڑ جاتے کنونسنگ ہیں جس پاور بات جو پہ ہے. اڑ جاتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں میرا خیال ہے وہی میں کہنے لگی تھی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جواب دہ تو کیا. ہی ایمرج ایز سمبڈی کہ جن کا اپنی ایک سے ہے. اچھا جی, ہمارے پاس ابھی بھی جو 29 کا حلقہ ہے 29 NA29 اس کا رزلٹ نہیں آیا, جیسے آئے گا ہم آپ کو وہ دکھائیں گے, لیکن ہم چلتے ہیں NA30. یہ بھی ایک بڑا مقابلہ, بڑا حلقہ جناب NA30 کا دکھائی جی. یہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ جیتی ہیں, آزاد امیدوار 78,971 ووٹ لے کے یہاں سے کامیاب ہوئی ہیں. 58,000 کی لیڈ ہے جی JUI کے ناصر خان صاحب سے. پشاور 3 ناصر خان صاحب ویل ریڈ وومن آئی تھنک سو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے, بہت پڑھی لکھی خاتون ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جن خواتین نے بہت مشکل وقت میں وہاں پہ اسٹے کیا, ان میں سے ایک اور شاندانہ انتہائی گریسفلی انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں کیری کیا ہے. یس, اور PTI میں آنے سے پہلے یہ خرم دستگیر صاحب جب فیڈرل منسٹر تھے کامرس, تو یہ ان کے ساتھ ان کے نیچے کام کر رہی تھی. ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی, جس طرح ان کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر غداری کے مقدمات قائم کیے گئے شاندانہ گلزار کے خلاف. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہی کے کیس کے اوپر DC اسلام آباد اور SSP اسلام آباد جو بار بار آرڈر جاری کرتے ہیں. اچھا جی, بریک کا کہا جا رہا ہے جی, اور ظاہر ہے اتنے سارے یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ان کی کارکردگی, پارلیمنٹ کردار, کتنے یہ افیکٹو سیاست میں آئے, نئے چہرے ابھر کے, اور کیا اس کا اثر پڑا, اس پہ ہم نے بات کرتے رہنا ہے. NA30 تک کے نتائج ہم نے آپ کو دکھائے ہیں جو اب تک آ چکے ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے جی, نیوز بریک ہے, کمرشل بریک ہے, اور اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ سے جاری رہے گا. آپ کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے GTV. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن پاکستان کا خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے, اور GTV کی ٹیم صرف یہ ٹیم نہیں جو آپ کو کیمرہ پہ نظر آتی ہے, کیمراز کے پیچھے, نیوز رومز میں, فیلڈ میں, ہر جگہ پہ ہمارے رپورٹرز, ہمارے ٹیکنیکل سٹاف, ہمارے پروڈیوسرز, ہمارا PCR سب نے مل کے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی ہے, اور بغیر کسی تعطل کے, بغیر کسی ڈیلے کے ہم ہر خبر آپ تک پہنچاتے رہے. اور ہم ابھی اس وقت امیر عباس صاحب پہنچے ہیں 30 کا, ہم نے بات کی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ کی. 31 اور 32 کے جو حلقے ہیں ان کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مجاہد ریلی صاحب تشریف واپس لے آئے ہیں, ثنا ہاشمی صاحبہ موجود ہیں, رضوان جعفر صاحب موجود ہیں, اور امیر عباس صاحب تو آپ کو فریم میں نظر آ رہے ہیں. امیر عباس صاحب بس جیسے بریک ہوتی ہے نا تو فریمی صاحب نے باہر کا ایک چکر لگانا ہوتا ہے. NA33 پہ آ جی NA33 پہ آئیں جی. NA33 دکھائیں. بریلوی صاحب کو مائک تو لگا دو بھائی. نہیں ہم تو چاہتے ہیں آپ بولیں. آپ ہی تو میرے ساتھ آپ کھڑے, باقی تو میرے ساتھ کھڑا نہیں. NA33 33 سید احد علی 93,429 ووٹ, آزاد امیدوار 93,429 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. کمال ہو گیا جی, 66,000 سے زائد کی لیڈ سے ہرایا ہے. پرویز خٹک سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا, پارٹی ختم کر دینے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. کون سی پارٹی؟ ایسی پارلیمنٹریئنز بہت ساری بنی ہے ویسے. پرویز خٹک صاحب پختونخوا کے ترم خان, میں سیریس بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ خیر یہ بات نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب, اگر آپ یہ کہیں تو اتفاق سے جب پہلی بار جب چیف منسٹر بن رہے تھے تو پشاور قلم میں نے پہلا انٹرویو کیا تھا ان کا CNBC کے لیے, تو اور فوراً مل بھی گئے تھے, شاید CM نہیں ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی ذرا سادہ آدمی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا, کیونکہ ایک بار جب چیف منسٹر بنے تو PC سے وہ پشاور پیدل گئے, لیکن جس مرحلے پر, جس وقت پر, اور پھر جو زبان استعمال کی ہے پرویز خٹک صاحب نے, گھٹیا زبان, اس سے, اور غالباً یہ ہوتا ہے ووٹر کا انتقام, ہیٹ کا ووٹ جو آپ بات کر رہے ہیں. اصل میں آپ اگر پارٹی چھوڑتے ہوئے نا گریس کے ساتھ چھوڑیں, اور بعد میں آپ گریس شو کریں. انہوں نے اپنے بانی قائد کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ بہتر. اسد کیسے کھڑے رہے. میں یہاں پہ ایک اور شخصیت کا بھی ذکر کرتی ہوں, شفقت محمود صاحب. جب ان کو پنجاب کی صدارت سے ہٹایا گیا, ان کے بہت سارے دوستوں نے ان کو کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. ابھی وہ فیصلہ کچھ کر نہیں پائے تھے, تو یہ میں اور یہ سارا بات, انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے درست کہ میں اس وقت جو ہے چھوڑ دوں پارٹی. سو بہت وزادار لوگ بھی ہیں سیاست میں, اور وزادار خاموشی اختیار رکھی. یس, انہوں نے خاموشی اختیار رکھی. اور پنجاب میں عثمان بزدار کا جو آنا ہے بنیادی طور پہ وہ عمران خان صاحب کا جو پرویز خٹک سے ایکسپیرینس تھا, ایک بڑا ریزن وہ تھا. انہوں نے کہا یار ایسا کچھ بندہ لے کر آؤ کہ جو ہمارے کہنے پہ چلے, جو وہ نہیں چل رہا. NA34 کی طرف چلتے ہیں جی. NA34 کا رزلٹ دکھائیے.
देखिए जी हमारी स्क्रीन पे NA-34 का नतीजा आ चुका है और यहाँ से अगेन जुल्फिकार साहब हैं जिनका पूरा नाम भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आज़ाद उम्मीदवार है, 95,692 वोट लेकर ये कामयाब हुए हैं। तकरीबन 70,000 की लीड है जी परवेज खान खटक साहब से, JUIFA के रहनुमा। यानी खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो जीतेगा, वो जीतेगा। ये वाली बात है। परवेज खान खंबे भी खटक वो कैसे हो गए? चलिए दूसरा वो परवेज खटक हैं, ये परवेज खान खटक हैं। ये खान खटक हैं सर, ये मुख्तलिफ हैं। बहरहाल जी NA-34 का नतीजा आप देख रहे हैं, जुल्फिकार साहब आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से 95,692 वोट लेकर जीते हैं और परवेज खान खटक साहब JUIFA के यहाँ पे जो उम्मीदवार थे वो 26,055 वोट लेकर यहाँ से हार गए हैं। नौशहरा 2 का हम आपको ये नतीजा दिखा रहे हैं, ये सरकारी नताइज हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जारी हो चुके। अगेन बात वही है कि जो लीड है वो बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत बड़ा है जीतने वालों का जनाब। उसके बाद हमारे पास जो 35 का नतीजा अभी तक नहीं आया, जो हम मिस कर रहे हैं। दोबारा आपके सामने जब हम हाजिर होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो अपडेट्स आई हैं वो आप तक पहुंचाएं। अगर उस वक्त तक हमने नतीजा फाइनल कर लिया, हमने नहीं, इलेक्शन कमीशन। अच्छा वही बात है ना, वो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, हमारा इदारा है ना। अमीर साहब तंजीला साहिबा, जो मैं यहाँ गया था तो और मैंने कुछ मुकामी मुखबिरों से इत्तला नहीं की कोशिश की तो यानी कोई और चैनल इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों को +100 पे लेके जा चुके हैं। ओके, मेरे पास भी 87 था लेकिन मैं अभी चलिए जो आप लोग नहीं, बता मैं रहे हैं वही ऐसे सुने। जस्ट जी हाँ, सही। मुमकिन है उतने ही हो, लेकिन हम तो जो अनाउंस हो चुका है वो सुना रहे हैं। हम भी यही हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी यही है, वो नहीं बैठती, अब इसके बाद बैठने की गुंजाइश रही नहीं है। तो हम जा रहे हैं जी NA-36 का नतीजा आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ खान साहब 73,076 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए हैं। 40,000 की लीड है जी इनकी जमीयत उलमा इस्लाम के उबैदुल्ला, 34,324 वोट लिए उन्होंने। और यानी जमीयत उलमा इस्लाम के अभी तक सिर्फ एक शख्स कामयाब हुए हैं इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवारों से, बाकी उन्होंने इनको बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया है। प्रोडक्शन से शिकायत पहुंचाना चाह रहा हूं आपके जरिए कि ये जो JUIF के साथ तस्वीर दी है, अगर आपको उनकी असल तस्वीर नहीं मिल रही तो फजल रहमान साहब की तस्वीर क्यों नहीं दे रहे? वो फिर सर उम्मीदवार का कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो ऐसी दाढ़ी तस्वीर होती है कि मिलती जुलती हो, वो सब हमें मालूम नहीं कि क्लीन से होगी या दाढ़ी वाली ज्यादा क्रिएटिव सोचना, ज्यादा क्रिएटिव ना सोचे इस बार। अच्छा जी, हल्का 37 उसका भी अमीर साहब हमारे पास रिजल्ट नहीं है। हमने ये असल में देखे, ये जो हमने जो ये तस्वीर लगाई है ना, ये एक नामालूम तस्वीर है। तो चूंकि इस वक्त मामला भी नामालूम मामला चल रहे हैं तो इसलिए हमने करीब करीब रखा है उसको। अच्छा जी, NA-38 38 का नतीजा दिखाइए जी, हमारी स्क्रीन पे आ चुके जी। NA-38 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शाहिद अहमद खटक साहब ने 1,18,056 वोट लिए हैं और ये यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार के वोट हैं 1,18,056। तकरीबन 67,000 की लीड से ये जीते हैं JUI के शाह अब्दुल अजीज करक से। 67,000 के लगभग लीड से ये भी एक और शिकस्त है। ये करक में भी JUI का वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है यहाँ पे जी। और जो हमारे जो PCR पे हमारी जो सपोर्ट है बहुत बड़ी, दानिश जिन्होंने उनको कोई किसी ने स्पेयर नहीं किया, उनको कोई आराम नहीं मिला। मुझे अब वो बिल्कुल सरदार सिकंदर सुल्तान राजा जैसी आवाज में बोलते हुए सुनाई दे रहे, कह रहे हैं हमारे पास अब 44 से पहले कोई रिजल्ट नहीं है। सो हम डायरेक्ट जा रहे हैं 38 से, यानी कि 39 का नतीजा नहीं आया, 40 का नहीं आया, 41 का, 42 का, 43 का, ये 1 2 3 5 हल्के हैं जिनका नतीजा अभी तक नहीं आया जी। 44 पे हम डायरेक्ट जा रहे हैं। सो NA-44 का नतीजा बताइए जी। ओ बड़ा मुकाबला। ओहो। सो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको लोग बहुत सारे हनीपुर भी कहते हैं, 93,443 वोट इन्होंने लिए हैं। JUIFA के सरबरा, PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब इनसे हारे हैं। और वोट कितने? 33,000 की लीड से ये जीते हैं मौलाना फजल रहमान से। 59,922 यानी मुफ्ती महमूद के साहबजादे, 50 साल से पाकिस्तानी सियासत का अहम तरीन किरदार, मुतअद्दिद बार हुकूमतों का हिस्सा रहने वाले, अपने गांव से अपने हल्के से हारे, और एक दफा नहीं हारे, इससे पहले भी इन्हीं साहब से। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि इसमें खास बात कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो 70 के इलेक्शन में 6 हल्कों से जीते थे, गालिबन 5 से, मुफ्ती एक खतरा था कि जहां पर वो हारे थे डेरा इस्माइल खां से।
इनके वालिद से। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अली अमीन ये तो एक्सपेक्टेड हल्का था ना, हम इस पर डिबेट भी कर रहे थे पिछले दिनों के अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पे एक अपना अच्छा वोट बैंक जो है वोट बैंक देखे नहीं था, वोट ये बैंक वोट पीटीआई बैंक का की वोट बात बैंक। नहीं है, मेरा PTI ख्याल का है कि वोट ये माहौल और PTI फिजा और हवा की बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ जो कि बड़ी ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे किरदार जिनकी शख्सियत, जिनके सियासी जो उनका रवैया था, जो मिजाज था, वो बिल्कुल पाकिस्तान के मुआशरे के लिए अच्छा नहीं था। और उनमें बहुत सारे ऐसे मनफी पहलू थे उनकी शख्सियत के कि शायद इन लोगों को सियासत के इतने बड़े मैदान में जगह ना मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो जो हवा बनी, जो फिजा बनी, लाकर इनके गंजा किया गया था इनको। अब वो तो जो इनके साथ हुआ वो तो बहरहाल हम और जानते जो हैं। जो कुछ इन्होंने भी किया वो भी हम सभी को पता है। बहरहाल जी, लेकिन मैं इनसे देख लें, अब आप लोग गवाही रहेगा, मैं इनसे दूसरा एग्रीमेंट कर रहा हूँ। नहीं ये बात दुरुस्त भी है ना, जो जुबान इन्होंने बदजुबानी इन्होंने की अली अमीन गंडापुर ने मरियम मरियम नवाज के बारे में, कश्मीर जाके फिर करप्शन की इतनी ज्यादा, फिर वो उनको- इल्जामात भी हैं। और फिर वो सरदार इलियास वगैरह के साथ मिलकर जो कुछ इन लोगों ने किया, मतलब वो अवाम काफी इनको लंबी एक दोबारा दास्तान- पार्लियामेंट में लाइए तो अब इन्हें कम से कम ये एक प्रोसेस होता है। अब आई होप आई होप, वैसे तो लगता नहीं है इनको देख के, लेकिन खैर उम्मीद की जा सकती है कि शायद लेकिन अब ये क्या deliver पैगाम भी करेंगे। है इस मुल्क के फैसला साजों के लिए, खुदा के लिए फितरी सियासत होने दें, लोग रिएक्शनरी वोट करना Yes. छोड़ देंगे। अमीर अब्बास साहब, मैं 200% आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। चले, Please. very good। ये तो और- इत्तेफाक है कि सियासत आज होने मिसाल दें कायम हो रही और है। मौलाना भाई। फजलुर रहमान क्योंकि दूसरी और- जगह से आ गए पार्लियामेंट में, नहीं, इनके साथ होंगे पार्लियामेंट एक में। और बात को भी इस्टेब्लिश करता है कि आप उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखें, लोगों ने आपने अगर कैदी नंबर 805 को सियासी मंजरनामे से हटा दिया तो उनकी मोहब्बत में कैसे कैसे लोगों को अवाम फिर इतनी भारी अक्सर से जिताती Yes, है। और दूसरी बात ये है कि ये भी जहन में रखिए कि एक तरफ आप कहीं पे ऐसा तो नहीं तासुर दे रहे कि लोगों को डीजल कहना, लोगों के बुरे नाम पुकारना, उनकी हद तक करना, उनकी सियासत में तहकीर करना, उसकी कबूलियत हो रही है। किसी खास माहौल में, किसी खास चीज के रिएक्शन में हम गलत चीजों को प्रमोट होने ना दे दें अपने एक मिनट समाज मुझे में। फिर आप दे दीजिएगा। जी सर, आपका मिनट हुआ पूरा। गालिबन जिनके बारे में अगर जब कैनेडी ने कहा कि जनाब अगर मैं तो आप अमेरिका में होते तो मैं आपको वजीर खारजा अपना बनाता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं सदर होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ये जनाब 1970 में मियां मुमताज खान दौलताना, मुझे याद है जब वो कैंपेन था, नीचे उतरे तो उसे चूहा चूहा कहा था। चलें सर, नहीं, तो नहीं, अब ये- सुनिए ना, नहीं, कयूम खान को हमेशा डबल बैरल खान कहते रहे। सर, एयर मार्शल अजहर खान को आलू खान कहते रहे। मुफ्ती महमूद को कहते थे छोटी ये निकाल के मुफ्ती है। मुझे नहीं, बरेलवी साहब, नहीं, बरेलवी साहब, बहुत, मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ कि सिर्फ इमरान खान मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। हम ये कहते हैं कि सिर्फ मैं इमरान नहीं खान करूंगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बिल्कुल बात सही सुनिए, है, मैं ये बिल्कुल कह रही सही है हूँ, आप। मैं ये कह रही हूँ कि बदजबानी के कल्चर की प्रमोशन ना समझा जाए। अगर मौलाना फजल रहमान साहब अली अमीन गंडापुर से हार गए हैं, पीटीआई के लोग भी ये ना करें। हम मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान इस तरह की सियासत लेकिन का। भाई ये बदकिस्मती है 46 है जी, लेकिन ये मार्केटिंग टेक्निक भी थी ये जिसका बाद भी तो है में ना कि अच्छा जी, सड़कों पे घसीटूंगा। 45 का भी हमारे अमीर, पास एक बात ये भी नतीजा देखा नहीं जाए है कि मैं जरदारी तुम्हारा पेट फाड़ कर सड़कों पे घसीटूंगा। नहीं, वो जायज है सर, वो जायज है। ठीक है जी, 46 का। और अगर जरदारी नवाज शरीफ को नासूर कहते वो भी जायज है। अंजुम अकील खान साहब, हम पहुंच गए जनाब इस्लामाबाद का हो गया इस्लामाबाद। जी। अंजुम अकील खान साहब 81,958 वोट लेकर शेर के निशान से कामयाब हुए जी। NA 46, ये है इस्लामाबाद 1। अंजुम अकील साहब जो हैं, इनके ऊपर भी वैसे करप्शन के काफी इल्जामात थे जी, और ये हारे और जीते हैं, पहले हारे भी थे। पहले हारे भी थे आमिर मसूद मुगल से, जो इमरान खान के हिमायत याफ्ता। 44,000 उन्होंने वोट लिए और आमिर मसूद मुगल सारी रात RO के दफ्तर के बाहर खड़े रहे। इनके साथ पीपल्स पार्टी वाले भी थे और बाकी उम्मीदवार भी थे, लेकिन इनकी भी यही शिकायत है कि हमारे साथ वही एक हो रहा है इंतखाब, एक हो रहा है चुनतखब। ये चुनतखब वाला जो मामला है वो इनके साथ भी, इनकी शिकायत ये है। अंजुम अकील खान भी एक रवायती सियासतदान है, अगर आप इनसे मिलें तो आपको हैरत होगी कि बहरहाल कैसे कैसे लोग जी कुछ ये जो जायजा रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका सिलसिला भी जारी रखेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन खबरें भी आ रही हैं जी। मुल्क भर से आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है।
इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी डाटा सेंटर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के नताइज जो है वो फराहम कर रहा है। इस वक्त वो डाटा सेंटर काम कर रहा है और हमारे नुमाइंदे हमीद लंगड़ा साहब इलेक्शन कमीशन के इसी डाटा सेंटर में हमारे साथ इससे बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के कितने नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कब तक ये नताइज आ जाएंगे। जी हमीद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो ईएमएस के हवाले से जो आरओ से रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है अगर उस पर हो सकता है कि सार्फिन का दबाव ज़्यादा है तो उस वजह से वो बार बार डाउन हो रही है और थोड़ी सी ताख़ीर हमें नज़र आ रही है। जो आरओज़ की जानिब से फॉर्म 47 दिया जा रहा है उसको ईएमएस पर अपलोड करने के हवाले से उसमें थोड़ी ताख़ीर नज़र आ रही है। गुज़श्ता 1 घंटे से जो है वो इसमें ये थोड़ी स्लो डाउन हुई है। अगर मैं मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के हवाले से बात करूँ तो अब तक 156 नशिस्तों के नताइज जो है वो ईएमएस पर मौसूल हो चुके हैं और कौमी असम्बली में 62 नशिस्तों पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। 46 पर मुस्लिम लीग नून है, 39 पर पीपल्स पार्टी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब तक जो है वो 2 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी है। MQM 4, काफ लीग 1 नशिस्त पर, JUI और BNP भी एक नशिस्त पर कामयाब हुई है, जबकि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है उसको भी 1 नशिस्त मिली है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो मजमूई तौर पर तकरीबन 600 से ज़ायद हलकों के नताइज जो है वो अब तक मौसूल हुए हैं और 255 हलकों के ताहाल नताइज जो है वो मौसूल नहीं हो सके। 109 कौमी असम्बली की नशिस्तों के जो है वो नताइज जो है वो मौसूल होना बाकी हैं। पंजाब असम्बली के 215 के नताइज जो है वो मौसूल हुए हैं। 81 हलकों के नताइज का अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। सिंध असम्बली के 108 हलकों के नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं, जबकि 22 के नताइज जो है वो मौसूल होना बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 95 हलकों के नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं और 18 के अभी होना बाकी हैं। बलूचिस्तान के 26 हलकों के नताइज जो है वो मौसूल हुए हैं, जबकि 25 के नताइज जो है अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमीद लंगड़ा से एक सवाल कर लूँ। हमीद लंगड़ा, आप यहाँ कमीशन में मौजूद हैं, क्या इसमें सदाकत 2 बातें आ रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि नून लीग 90 तक जा सकती है और एक कहा जा रहा है कि आज़ाद यानी तहरीक इंसाफ 100 क्रॉस कर चुकी है। आप तक कुछ ऐसी खबर पहुंची? नहीं, अभी तक जो है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। ईएमएस से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो वेरीफाइड हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो अभी तक दोनों जमातें जो है जो ये अहदाफ के हवाले से सोशल मीडिया पे या दीगर जगहों पे बातें की जा रही हैं। कल रात भी यही हुआ था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर की जानिब से अपनी लीड का ऐलान किया गया था तो उस वक्त सिर्फ 19% पोल्स के रिज़ल्ट आए थे, जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर की जानिब से 150 सीटों का ऐलान किया था। लेकिन अदाद-ओ-शुमार जो है वो अभी बहुत कम है। 25 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, पोलिंग का वक्त गुजरे हुए 25 घंटे से भी ज्यादा। तो क्या जवाब दे सकता है इलेक्शन कमीशन इस बात का कि अभी तक नतीजा कंपाइल नहीं हो सका? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि ईएमएस जो है वो इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। उनके पास 2-3 ऑप्शन और भी मौजूद थे, लेकिन जब इंटरनेट की सर्विसेज बंद हुई तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी हमारा जो आरओ ऑफिस थे, डाटा एंट्री का सिस्टम था, जो राब्ता कार था, जो फैसिलिटेशन हो रही थी ईएमएस के लिए, वो डाटा एंट्री का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हुआ और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को जो है ये नताइज जो है वो ताख़ीर से मिले। ताहम ये मामला सॉर्ट आउट किया तो उसके बाद से अब मुतवातिर वो जो 7-8 घंटे का जो डिले टाइम था वो बड़ा मार्जिन है और उसी वजह से जो है वो ये इलेक्शन कमीशन की इसके मामले के ऊपर जो 35 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगा कर ईएमएस का सिस्टम जनरेट किया गया था और ये कहा गया था, हमें बार ब्रीफिंग दी गई थी कि ये जो है ऑफ द नेट बड़ा अच्छा काम करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन का सवालिया निशान है। कब तक तशरीफ लाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर लांगड़ा साहब? ये राजा साहब किधर हैं?
یہ ناکامی جو وزیر ای صاحب ایم ایس ہیں کی تو آپ الیکشن بتا رہے کمیشن میں ہیں، ہی، لیکن یہ ای ایم ایس کی جو آپ ناکامی بتا رہے ہیں، اس کا وہ آ کر اعتراف کریں گے کہ جس کو انہوں نے بار بار ٹیسٹ کیا تھا، جس کی جتنا پیسہ اربوں خربوں میں لگ گیا، وہ تو خیر جہاں تھا وہ کروڑوں میں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں وہ خود کدھر ہے، پہلے تو یہ تو بتا دیں. 50 ارب. جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ گزشتہ رات جب ہماری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو اس وقت تک وہ بڑے پر امید تھے کہ جی یہ ایم ایس ٹائم پہ کام کرے گا، لیکن 2 بجے جب وہ یہاں سے ایمرجنسی میں نکلے تھے اور وہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے چیئرمین پی ٹی اے سے ملنے کے لیے گئے تھے اس حوالے سے، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہمیں میڈیا کو بھی ایوائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. واپس تو آ گئے ہیں نا، لاپتہ تو نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے جی، حمید لنگر صاحب بہت شکریہ جی، ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جو نمبر انہوں نے بتایا ہے اس ڈیٹا سینٹر سے جو ای ایم ایس میں فیڈ ہوا ہے نمبر جناب، تو یہ کہ 62 آزاد امیدوار اب تک کامیاب ہوئے اور ان کے نتائج مکمل ہو چکے ہیں. نون لیگ ہے جی 46 پر، پیپلز پارٹی ہے 39 پر، ایم کیو ایم ہے 4 اور استحکام کا نمبر ہے 2، کاف لیگ کی 1 سیٹ، جے یو آئی کی 1 سیٹ، بی این پی کی 1 سیٹ اور جو پختونخوا میڈیا بمی پارٹی بی بی. ابھی جو میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کی ایک ٹویٹ بھی، اور ہماری بہت ہی قابل احترام مریم بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ جب نتائج ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور وہ وننگ اسپیچ اوکے جی دکھاتے ہیں آپ کو، ماڈل ٹاؤن. چلیے ماڈل ٹاؤن چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. چلو جشن ہو رہا ہے. غربت میں سہارا، غربت میں سہارا ہے فخر ہمارا، ہے فخر ہمارا. یہاں پر اپنے کارکنوں کو، پارٹی ورکرز کو، پارٹی لیڈرز کو بلایا ہے اور میاں صاحب یہاں پر وننگ سپیچ، وکٹری سپیچ دیں گے. اس سے پہلے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 156 حلقوں کے نتائج ابھی آپ کو دیے ہیں. 251 کے آنے ہیں یا نہیں آنے؟ وہ اس سے پہلے وننگ سپیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ غیر حد پہ غیر سرکاری نتائج ہیں. وننگ سپیچ تو نہ کہنا، بولے اپنے ورکر سے خطاب کر رہے ہیں. وننگ کس چیز کی؟ انڈیپینڈنٹ کے 62 ہیں. میڈم ساری گل ہو گئی ہے نا، گل بد گئی ہے. آپ اچھا یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب یہ سپیچ آئے گی نا تو یہ ایسا نہیں، وننگ سپیچ نہیں ہوگی، وننگ سپیچ نہیں ہوگی. اور میں آپ کو کہوں ہمیں لکھنا بھی نہیں چاہیے اور کہنا بھی نہیں چاہیے. بالکل اصولی طور پر یہ وننگ سپیچ نہیں ہو سکتی. اشتہار کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ملک نظر آ رہے ہیں. نہیں دیٹس ناٹ فیئر. میرا خیال ہے اٹس ناٹ صاحب کا بھی ابھی، میاں صاحب بھی ابھی فوراً ان کا بھی اگر وہ جشن منا رہے تو فیئرلی منائیں، بالکل منا لیں. سامنے نظر آئے گا. لیڈرشپ جو ہے وہ سٹیج پر آ گئی ہے. پرویز رشید صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، بالکل ویسے لگ رہا ہے جیسے وہ بالکونی سے. عرفان صدیقی صاحب نظر آ رہے ہیں. نہیں وہ آتی نا ملکہ برطانیہ ویو کرنے کے لیے. یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، کس دل سے آئے ہیں. جی آپ یہ ماڈل ٹاؤن سے دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر. میاں نواز شریف صاحب یہاں پر آ کے اپنے ورکر سے، پارٹی رہنماؤں سے خطاب کریں گے، پارٹی رہنما ان کے ساتھ بھی ہوں گے. یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو وننگ سپیچ نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم چلا رہے ہیں کہ جشن منا رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہی ٹویٹ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بولیں کہ مجھے کیوں نکالا کے بعد مجھے کیوں بلایا، اور اس پر وہ آ کے بات کریں کہ مجھے بلانا تھا تو ایک بڑا پرزور جو استقبال اور اچھا یہاں پہ 2 ذمہ داریاں مجھے نبھانی ہیں. ایک تو یہ کہ تجزیے ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہے. دوسری خبر ہے، اور جو خبر ہے ظاہر ہے وہ میں کسی سورس سے کوٹ کروں گی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی رہنما اس ملاقات، اس خطاب، اس گیدرنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جشن منا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ ہارنے والے تو اس طرح سے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ جھنڈے نہیں لہرا رہے ہوتے. سو جو وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہ رپورٹ کر رہی ہوں. جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان سب کی اپنی رائے ہے، یہ خود ذمہ دار ہے. مجاہد بریلوی صاحب بڑا خوبصورت مصرع آپ نے کہا، ذرا دوبارہ دہرائیے. کس دل سے آئے؟ یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. امیر عباس صاحب مسکرائیں مت. میں تو بلکہ وہ دل سے مجھے یاد آئے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ انسٹرکشنز آ رہی ہیں میرا خیال ہے لوگوں کو، لیکن میں
अच्छा जी, लाहौर के साथ साथ हम कुछ कराची की सूरत हाल की भी बात करते हैं। सना साहिबा ने कल इतना शोर नहीं मचाया, कल यहाँ पे भी जो मिठाइयाँ बंटने की खबर आई थी, सना साहिबा बिल्कुल इतनी जज्बाती नहीं, बिल्कुल जज्बाती नहीं थी। अच्छा जी, जरा खबर ऊपर कीजिए जी, हम आपको कराची की सूरत हाल भी बताते हैं जी। जो कराची के नताइज हैं वो सुस्त रवि का शिकार है। आप खबर मुझे पढ़ने देंगी? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मईशत, जहाँ पे एक एक्टिविटी है कराची, और कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं और उन 22 नशिस्तों से नताइज आने का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इस सुस्त रवि के पीछे कौन से मुहर्रकात हैं, और 12वें आम इंतखाबात के ओवरऑल भी नताइज की बात करें तो वो भी सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक 10 से जो नशिस्तें हैं उसके नताइज सामने आए हैं। 22 नशिस्तों में से MQM 7 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल की। ये हम आपको कन्फर्म जो है नताइज वो बता रहे हैं। कराची से सूबाई असम्बली की 47 में से 32 नशिस्तों के भी नताइज जारी कर दिए गए हैं। MQM ने 15 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों ने 8 नशिस्तें हासिल की हैं, यानी कि MQM यहाँ से आगे है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे जी, हमारे नुमाइंदा असगर अजीम साहब हमें ज्वाइन करें। जी असगर साहब बताइए, इस वक्त आप कहाँ हैं, और कराची के जो हल्के हैं नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के, उनके नताइज आने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? देखिए, ताख़िर क्यों हो रही है इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है, लेकिन जो कानून था, जो डेडलाइन थी, वो डेडलाइन गुजर चुकी है। और आज तकरीबन दोपहर में भी एक वार्निंग इशू की गई थी DROs को, ROs को, कि वो आधे घंटे में नताइज दे दें, लेकिन नताइज अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। सिंध असम्बली के नताइज की मैं बात करूँ तो आप मेरे पीछे जो इलेक्शन कमीशन का चार्ट लगा हुआ है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है। और अब तक जो है, अगर कराची के 47 में से 33 नशिस्तों के जो है नताइज सामने आए हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान है जिसने 16 सीटें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार 8 नशिस्तों के साथ, और जमात इस्लामी 1 नशिस्त से कामयाब हो सकी है। जबकि यहाँ सबको इंतज़ार है PS 129 के नतीजे का भी और PS 125 के नतीजे का भी। जबकि PS 123 के हवाले से जो रिजल्ट सामने आया वो अनकम्प्लीट सामने आया, जिसको हम अभी तक हतमी नहीं समझ सकते। आप जरा बता दीजिए 129 और 125 से कौन लोग हैं जिनका बहुत इंतजार है? देखिए, 125 में तो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के, हाफिज़ नईमुर रहमान, वो खुद उम्मीदवार हैं, और उनके जो उनके NA 250 है ना, तो उसका रिज़ल्ट अब तक सामने आया, वो वहाँ से भी उम्मीदवार थे, और 125 से भी, लेकिन अब तक वो रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। और पूरी कराची को इस रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि आया यहाँ पे जो वोटर्स का रुझान है वो क्या रहता है और किसके हक़ में जीत सामने है। जबकि PS 125 में जो कि MQM के मरकज़ 90 के बिल्कुल जो पुराना जो मरकज़ था वो उसके बिल्कुल साथ लगता है, और यहाँ से जो आदिल अस्करी वो उम्मीदवार थे 125 से, और उनका भी इंतजार किया जा रहा है। गो के आदिल अस्करी ने ये दावा किया है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 जी कोई पूछना चाहते हैं जी असगर साहब से कोई सवाल? अमीर साहब, सना साहिबा, मुजाहिद साहब। असगर ये कुछ यार, मेरी तो सारी पॉलिटिकल साइंस फेल हो गई है। मेरी तालीम, मेरा तजुर्बा, मेरा मुजाहिदा, मेरा मुशाहिदा सब नाकाम हो गया है। और मुझे समझ नहीं आ पा रही कि कराची जैसे शहर में जिसकी 3 करोड़ की आबादी है, वहां 20-20, 25-25 हजार के वोट से MNA बन रहा है। ये बन रहा है या मतलब ये क्या हो क्या रहा है? सभी बन रहे हैं। नहीं मुजाहिद भाई, बात यह है कि हमें खुद भी हैरत है कि NA 244 जिसके 2.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, वहां से सिर्फ 20,000 चंद वोट लेकर डॉक्टर फारूक जैसा सत्तार जैसा बड़ा सियासतदान जो है वो कामयाब हो रहा है। तो हैरत तो उस पर हमें भी है, आपकी तरह। हम तो आपके शागिर्द हैं। ये कहा जा सकता है कि जो वोट डले थे वो डब्बा कहीं और चला गया है और ये किसी और डब्बे की गिनती हुई है। ये डब्बा पर फौरी तौर पर तैयार किया गया था। वो असल डब्बा तो साइड में हो गया। ये जो हल्का है ना, इधर सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गुलशन मेमार का, सरजानी का, लोग जो है पूरी दूर तक पहुंचे नहीं है जी। असगर को सुनिए। ये भी कह सकते हैं। अच्छा असगर दोबारा कहिएगा, क्या कह रहे हैं आप?
लेकिन ये भी तो मैं है ये ना कह कि रहा हूँ, ये इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि NA-244 के जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा नाराज थे और घर से बहुत कम निकले, तो जो वोट डले वो जेन्युइन डले, जो कि तकरीबन 25 से या तकरीबन 30,000 टोटल वोट बनते हैं वो जो ये वहाँ भी पे है। डले हैं NA-244 मुजाहिद में। साहब। और ये एक सरप्राइज जो है टर्न आउट है NA-244 का कि 2.5 लाख वोट सिर्फ जो है 30-35 हजार वोट का डलना। तो ये ना सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार की अपनी शख्सियत के लिए भी एक सवाल है, जबकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे तो भाई असगर अजीम साहब, मैं मुजाहिद साहब सवाल करेंगे, ये रात भर एमकेएम वाले जश्न किस चीज का मना रहे थे वहां पर बैठकर? मैं भी बल्कि शामिल था क्यों उसमें। क्यों आप गए थे? तो क्यों गए थे सर? आपको किस चीज का जश्न जश्न है? सर ये कोई नहीं, स्वीट ये- से वो तो कोई कहाँ नमक से ये कवर करने गए थे। ओके मिठाई असगर खाने साहब गए बहुत थे। शुक्रिया, आपने जो है हमें अपडेट किया। दोबारा भी आपके पास आएंगे जी। कराची से ही एक और खबर हम आपको बता, अब जो इलेक्शन के नताइज के इंतजार में सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कराची में पीटीआई के कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं। जिला किवाड़ी और गरबी के रिजल्ट तब्दील करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। और जनाब आ गई बात वहीं पे जहां का शक था सबको। कराची से सौलत जाफरी साहब हमारे नुमाइंदे GTV के हमें रिपोर्ट करेंगे। सौलत बताइएगा क्या मनाजर देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बाहर निकले हैं, कोई सरकर्दा रहनुमा आपको नजर आ रहा है? इस एहतजाज को लीड कौन कर रहा है? कितनी इम्प्रेसिव क्राउड। असम्बली हल्का यानी 244 के नताइज में ताखीर और तब्दीली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो इस वक्त शुरू हो गया है। DRO वेस्ट ऑफिस के सामने एहतजाज के बायस हबीब बैंक जाने वाली सड़क भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। एहतजाज के बायस DRO के एतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। NA-244 से PTI के नामजद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर मुज़ाकरात के लिए DRO ऑफिस में मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो PTI कारकुनान है इनकी एक बड़ी तादाद DRO ऑफिस के बाहर मौजूद है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। कितनी बड़ी तादाद है? मुजाहिद साहब पूछना चाह रहे थे, कितना कोई इंप्रेसिव नंबर है? बिल्कुल, इस वक्त 600 से 700 अफराद जो है वो DRO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं जो कि PTI के कारकुनान हैं। इनकी जानिब से सड़क भी जो है वो बंद कर दी गई है। न सिर्फ DRO वेस्ट ऑफिस बल्कि मुख्तलिफ शहर के इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त PTI कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि गुलिस्तान जौहर में भी जो है वो PTI के उम्मीदवार जो थे वो खासे अच्छे नंबर ऑफ वोट से जो है वो जीत रहे थे, लेकिन फिर रात में एकदम से तो इस पे सौलत आपके पास अगर ये खबर हो कि ये सारी जो एहतजाज की कॉल है किसकी तरफ से आई है, कोई बड़ा लीडर जो कल जिम्मेदारी भी ले, ये ना कहे कि खुद ही निकल आए थे सब? देखें, अब तक किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी जो है वो नहीं ली जा रही है किसी बड़े लीडर की जानिब से, लेकिन अवाम जो PTI के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं। सौलत एक बात ये भी तो है, सौलत के एक बात ये भी तो है कि ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड जो कामयाबी अब तक PTI की हुई है उसके जश्न भी तो उसका मनाना चाहिए। ये कल अगर 2 हलकों को लेके कि जहां आप हार रहे हैं तो वहां तो आपने एहतजाज कर रहे हैं, और जहां गैर मुतवक्का तौर पर जो कामयाबी मिली है सर कराची में तो बेशुमार अभी तक हलकों रिजल्ट में। ही नहीं आया ना सर। NS के कहाँ रिजल्ट आए? नहीं आए ना खान रिजल्ट, साहब को सर। तो आपको पता ना वो है मसला- कि दिल भी अजीब बच्चे की सी जिद पे अड़ा है, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो ये वाला हाल शुक्र है कि बैरिस्टर गौर साहब नहीं करेंगे। सौलत जाफरी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दिल से मुझे वो असल में जिला वो- किवाड़ी और गरबी में निकले हैं, और जैसे मैं कोई शेर फेंकती हूँ साथ ही अमीर अब्बास साहब की नहीं, वो जो दिल से जो उन्होंने दिल की बात की, उन्होंने खान साहब के दिल को हिट किया, तो असल में ये कहना ही चाहती हैं कि शायद इस शेर में क्या कितने कहना चाहते बेमुरव्वत हैं तेरे शहर के लोग, वाह। कितने बेमुरव्वत हैं तेरे शहर के लोग, दिल की धड़कन को भी ढोलक की सदा कहते हैं। वाह वाह। तो ढोलक की सदा जो है, इनको हाथ से ढोलक की जब सदा तक दिल है, जो है, ये बजा रहा है अमीर अब्बास ढोलक की साहब। सदा लगती है। ढोलक की सदा वहाँ है। शहर पे ऐ मेरे शहर तेरे लोग ये सब तेरे नहीं। वाह, ये एमकेएम के लिए ऐ मेरे शहर तेरे लोग ये सब तेरे नहीं, ये जो सब तेरे नजर आते हैं सब ये सब तेरे ये सब तेरे नहीं। क्या बात है जी। ओके जी, एक और नतीजा हमारे पास आ चुका है। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हमने आपको फील्ड से पहुंचाई हैं। PK 81 पेशावर का सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया है जी। खैबर पख्तूनख्वा की ये सूबाई सीट है। आजाद उम्मीदवार सैयद कासिम अली शाह 44,310 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, और अवामी नेशनल पार्टी के अरसलान खान नाज़िम 8,177 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, यानी कि 44,310 आजाद उम्मीदवार। ये तो 500 गुना का फर्क है इनकी जीत में। बहुत बड़ी इन्होंने विक्ट्री ये ली है। पेशावर 10 है। और आप ये याद रखिए कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो जब वहां पे बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे तो यहाँ से अपनी पोजीशन को संभालना, अपनी साख को कायम रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा बड़ा चैलेंज बना हुआ था। और पेशावर के मेयर बने थे
मौजूदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बेटे मौलाना फजल रहमान के समधी के बेटे वो मेयर पेशावर मुंतखब हुए थे। जनाब वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। मुजाहिद बरेलवी, सना हाशमी, रिजवान जाफर, अमीर अब्बास और तंजीला मजहर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, और जो हम अब तक के नताइज का एक जायजा आपके सामने पेश कर रहे हैं उस सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे जहां पे वो टूटा था। मिलिए ब्रेक के बाद।